A very good morning to you all, and welcome to this masterclass by Ms. Deval Joshi on the secret power of habits. We'll start with the session just now. Before that, let me just introduce and welcome our guest and also talk about Skills Rediscovery. So, Skills Rediscovery is a multilingual skills education platform which has a lot of courses in the domains of business, creativity, lifestyle, and technology. So we are a platform where learners can get access to loads and tons of online courses for various skills, but through a live session, right? So through a live session just like this one, and also with the comfort of choosing from multiple languages. So you can check out our website for more details. Now let me quickly introduce you our guest for today's masterclass, Ms. Deval Joshi. She has a wonderful course on our platform, by the way. It's called Train Your Mind Instantly for Success. Deval Joshi is the founder of Deval the Coach. She started her career as a third generation teacher. As a teacher, she developed an interest in counseling and supporting her students. She used to motivate students and their parents and help them to achieve better. That's where she turned herself from a teacher to a trainer. As of today, she has been acting as an external faculty for life skills in various educational institutions. Apart from that, she is also acting as a consulting partner in various companies. She's also a columnist and is invited various times by television news media, radio channels, corporate houses, schools, and hospitals. To date, she has trained more than 10,000 individuals and motivated them for their life mission. Thank you so much for joining, Deval, and welcome to this master class. Thank you so much. Thank you so much, Rushal, for this wonderful introduction. As usual, this introduction made me feel motivated all the time, and thus I'm here to feel motivated and just to transfer my motivation to others. Thank you so much. Awesome. Yes, we would now request you to please start your masterclass. Okay, yeah. So we'll straight away start with the topic, and today's topic, as you all know, this topic name is based on your habit, right? So whenever we get entered into the habit cycle, or else whenever we introduce ourselves to different habits, what will happen to us and how our neuron system react on that, and that's the reason why the collaboration of this neuron system gets entered into the cycle, and that's the reason why we have given a name as if it's a habit cycle. So what all are the secret things which we will get to know in this masterclass will unfold one by one, so that you will get to know that this smaller habit system in your day-to-day life, how can you change that, and how can you achieve your goal, how can you be the participant of that particular success race, and how can you turn yourself from the poor performer to the achiever. So that's where we are here to discuss something on that. And again, on very fine morning of this lazy Sunday, you all are here, so I must appreciate you all that you all are true learner, and that is again a new habit which we are developing, or else which you are initiating for your learnings, right? So clap for yourself first of all, and that's where we start our masterclass. So first of all, I just want you guys to note down certain things, and that's where I just want pen and paper with you, so that if at all you feel like that is something which is very important for me, so you can note down instantly. So if you are not ready with that, I'm giving you 30 seconds to go with that, and get ready yourself with this. 30 seconds to go, and then we'll start again. And 30 seconds is just to prepare yourself for this masterclass. Sure.
It's all done, and I'm sure you all are back with us. Okay, now as we are limited with a group size, so I always prefer a smaller group size for my teaching pattern. Why? Because this particular topic, when we talk about psychology, when we talk about habit cycle, this all are continuous process, and that's where we need to engage people for the active learning, right? So just to introduce this particular topic, I just want a clear and very crisp answer from all of you. How will you define habit? Just unmute yourself and be random to respond to things. Can you repeat what the do you question mean once by again? Habit? What do you mean by habit? How will you define habit? We have Manohar ji, who is a very senior person here, and he is from my contact. He is also a trainer. So I just wish Manohar ji, if you can put a light on this, how will you define habit? No one? Well, I think habit is something that we tend to do on a regular basis in fixed patterns. Yeah, and they can be good or bad habits. They can be productive or unproductive habits. Perfect. Going great. Okay, so a habit is again a very systematic process of each and every action which you are conducting in your day-to-day life. So it includes your walking style, it includes your routine day-to-day activities, it includes your speaking style, it includes your bad habits, good habits, your sleeping pattern, your eating habits, each and everything, whatever you are considering right now as your behavior, that is just incidents from your habit cycle, and now it's a part of your life. So that's where I just everyone to mute themselves, please. There is a disturbance coming up here. Perfect. Thank you so much. Okay, so a habit is a systematic process, first of all. When engaging in a particular activity on a regular basis, yes, of course, this is also the thing where we introduce ourselves being a unique personality. So whenever we introduce habit cycle, that means we are introducing ourselves to the world, right? I am good with this, I'm not good with that, I am very habituated to learn this, I'm very habituated to have this, I'm very habituated to do this. So this all are the framed sentence which we used to have in a day-to-day life, in a day-to-day conversation. But we are very much unaware by having this conversation that whenever we talk about this habit, whenever we talk about this habituate situation, that only means that you are not so conscious doing this activity, but still unaffortably you can do this, you can manage this. So very basic and very simple example is, whenever we turn ourselves from the infant to the toddler, we learn certain things, right? We learned jumping, we learned crawling, we learned running. So this all are the activities which was very unobvious for us during our newborn time, during our 3 to 6 month ka time break. But now we are habituated with this. So if at all I allows you to do certain activities, you won't find it uncomfortable. You always feel like it's part of my life, it's part of my routine, and it's part of my behavioral pattern. I'm very comfortable doing this, right? So that is known as your behavioral pattern, which has been molded in such a way where you are not so conscious doing that actions, right? So here I just take the permission of all of you, and if you can allow me to share the screen, I'll make you feel certain things which you feel like, yes, of course we are doing this and we are very habituated doing this, but
certainly, uncertainly, knowingly, unknowingly, we are not giving attention to this rather, है ना? So this all activities has been placed from certain areas, right? So this is our mind structure, and the front portion of our mind structure, which is the conscious mind, right? We have divided our mind, we as a psychology person, we have three minds, right? And if you allow some other public, like general people, they always say we have two minds, conscious mind and unconscious, subconscious mind, right? But in the psychological term, we have three mindset. First is a conscious mind, another one is unconscious mind, and then the subconscious mind. So let's assume कि आप साइकिलिंग सीख रहे हो, राइट? सो साइकिलिंग जब आपने सीखना शुरू किया, सो देयर आर फ्यू मेनी एक्टिविटीज लाइक आपको बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको पैडलिंग कंटिन्यूअस देना है, आपको उसका गवर्नर जो है उसको थोड़ा बैलेंस करना है, स्टीयरिंग, एंड देन आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है उसके ऊपर भी फोकस करना है। नाउ आपकी चेन की जो ग्रिप है वो थोड़ा उसको लूज हो रही है, या फिर वो चेन बार बार अटक रही है, देन यू हैव टू फोकस ऑन मैकेनिज्म आल्सो, राइट? सो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर आपका फोकस ना रहते हुए आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आपका फोकस बहुत ही स्कैटर्ड हो जाता है। एंड दैट्स वेयर जब हम साइकिलिंग सीखते हैं बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि नहीं पैडलिंग फ्रंट में करना है कि रिवर्स में करना है, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू राइट नाउ सो दैट यू कैन रिलेट दिस, है ना? सो वहाँ यहाँ से यहाँ तक वो ट्रांसफर करते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन कनेक्शन का एक जाल है, राइट? वी यूज्ड टू गेट दैट वर्ड कि हमारे न्यूरॉन कनेक्शंस जितने पावरफुल हो गए, द मोर पावरफुल वी हैव अ न्यूरॉन कनेक्शन, द मोर पावरफुल दैट पर्सन बी, द मोर ब्रिलियंट दैट पर्सन बी, द मोर इंटेलेक्चुअल दैट पर्सन बी। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम दें तो एक ही प्रोसेस यहाँ पे हमें समझ में आता है, that from the prefrontal lobe to the subconscious mind, उसका जो जर्नी है उसके बिटवीन में आपने न्यूरॉन कनेक्शन को कितना इजी रास्ता दिया। इट्स लाइक अ जंगल, ठीक है? आप जैसे ट्रैफिक में फंस जाते हो, सो इफ यू आर अ गुड ड्राइवर यू विल गेट टू नो कि मेरी गाड़ी कहाँ से निकलेगी एंड फ्रॉम वेयर आई कैन मेक आउट द रोड इजियर फॉर मी, राइट? सो वही चीज यहाँ पे भी होती है। The more you process, the more you become active on this. आपकी ये जो complex information है उसको simplify करने वाला जो procedure है वो बहुत easy हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा slow down करते हो, आप इसको regular basis के ऊपर activity develop करके नहीं देते हो, then of course this process goes slow, right? So इसी वजह से we become poor performer, we become highly achiever, ये सारी चीजों का झमेला यहीं से शुरू होता है। Now where our habit comes, so ये जैसे ही आपने simplify करके यहाँ पे पहुंचा दिया, which is known as our unconscious mind. Unconscious mind का सिर्फ एक ही पार्ट होता है which will helps you to recollect, which will helps you to memorize your past experiences. आपके experience को memorize करने का काम करता है, और procedure जो है वो यहाँ से decide होता है कि आपने past में ये किया था and you got succeed with this, so इस time पे भी you can apply the same formula. That is all about your subconscious mind का portion, ठीक है? So ये जो सारी चीजें हैं ना वो यहाँ से develop होके यहाँ तक आती है, and if at all you can tune your mind in such a way कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक है उसमें से आपको कैसे गाड़ी निकालनी है, if you can channelize that path very easily, then yes of course you are a good driver. So इसमें भी यही है, information आपके पास एक बार हिट हुई, दूसरी बार आपने उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत ही टाइम नहीं लगाया एंड आपने उसको सीधा वे आउट दे दिया, so वो एक चैनल बन जाएगी। So now the more precise this channel would be, उतना जल्दी आपका हैबिट फॉर्मेशन होगा, ठीक है? सो इससे ही मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल, इट्स अ काइंड ऑफ साइंस
इसको साइंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव अ न्यूरॉन कनेक्शन का पैटर्न टू स्टडी, न्यूरॉन कनेक्शन को किस हिसाब से ट्रेन करना है, अगर आपके न्यूरॉन बीच में ब्रेक हो जा रहे हैं तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसको हम अप्लाई करके नाउ वी कैन रिकनेक्ट विद दैट, उसकी दूसरी अल्टरनेट मेथड कौन कौन सी हो सकती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सो दैट इफ एट ऑल यू आर गेटिंग अ वन लुक टू नॉट टू बी करेक्ट, सो आपके पास दूसरा अल्टरनेट हो, राइट। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैबिट साइंस। ओके, नाउ हैबिट तो आपकी हो गई, बट उसका सक्सेस के साथ क्या पॉसिबिलिटी है? सो जितनी पावरफुल आपकी हैबिट होगी, इधर आपकी बैड हैबिट ले लो या फिर आपकी गुड हैबिट ले लो, वी आर नॉट फोकसिंग राइट नाउ ऑन एनी सर्टेन हैबिट, राइट, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन अ जनरलाइज हैबिट साइकिल। सो जनरलाइज हैबिट साइकिल एक ही चीज आपको सिखाती है कि आपकी जो भी हैबिट है ना, वही आपको अच्छा इंसान, बुरा इंसान, आपको बड़ा इंसान, छोटा इंसान, आपको परफॉर्मर पर्सन या फिर पुअर परफॉर्मर पर्सन के टैग देने में आपकी हेल्प करती है, राइट। सो इसीलिए हम हैबिट साइंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल आर द रूट्स, दिस ऑल आर द बेस ऑफ आवर सक्सेस, दिस ऑल आर द बेस ऑफ आवर डे टू डे लाइफ रूटीन, ठीक है। सो इसके लिए वी हैव दिस पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज योर फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड दिस इज योर हाइपोथैलेमस, जहाँ पे हम अपने हार्मोनल सिक्रेशन का और वो सारा ग्लैंड्स और वो सारी चीजें यहाँ से फोकस होती है। नाउ हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर पोर्शन व्हिच इज नोन एज द स्ट्रेटियम, राइट। सो ये स्ट्रेटियम का जो रोल है यहाँ पे वो क्या होता है? स्ट्रेटियम का रोल सिर्फ एक ही चीज में होता है, जिसको बोलते हैं हम अपनी आपने जैसे ही हैबिट साइकिल को परफॉर्म करना शुरू किया, आपने जैसे ही अपने हैबिट साइकिल को कनेक्ट करना शुरू किया, उसको बोलते हैं हम चंकिंग, राइट। वो प्रोसेस को चंकिंग बोलते हैं। चंकिंग प्रोसेस दैट इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कितने इजी वे से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, उसका इमीडिएट वे आउट अगर आप निकाल सकते हो तो गुड इनफ टू डू दैट, ठीक है। वो चंकिंग प्रोसेस जितना आपका पावरफुल है, उतना आपका हैबिट फॉर्मेशन फास्ट होगा। सो ये जो पर्टिकुलर जगह है स्ट्रेटियम, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, आपको लोकेट करना, आपकी हर एक जो हैबिट साइकिल है उसको फाइन ट्यून करना, उसको यहाँ से ट्रांसफर दे के यहाँ तक पहुंचाना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक। सो सर्टेन थिंग्स, आई एम श्योर जैसे ही हमने ये सारी चीजों के ऊपर सोचना शुरू किया होगा, यू ऑल मस्ट हैव लैंडेड विद वन सर्टेन थिंग्स वेयर यू फील वेरी कंफर्टेबल। जैसे अगर कोई मुझे पूछे तो आई ऑलवेज से, हाँ मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट आई कैन डू दिस फिंगर एक्टिविटीज वेरी नाइसली। पूरे दिन में 2-3 बार ऐसे कर लेती हूँ, सो दैट आई गेट रिफ्रेश। मैं कहीं पे भी अपने आप को नर्वस फील करती हूँ, आई यूज्ड टू डू दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी, where I feel like yes, of course there are certain things which I can do and others cannot do, right? So ये जो सारी चीजें होती है ना, that boost your confidence, that boost your dopamine portion, that boost your certain hormones which is known as a feel good hormone, right? So जैसे ही feel good hormone का secretion ज्यादा होने लगता है, you feel wow, you feel relaxed, you feel yes, that's what I wanting to have, right? So certain task, जैसे चलते चलते बच्चों का गिर जाना, या फिर साइकिलिंग करते करते गिर जाना, या फिर कोई साइकिल सिखाने वाला कोच हमें इतना बेकार मिला हो, हमें इंटरेस्ट ही निकल जाए कि नहीं यार साइकिलिंग नहीं सीखनी है, कुछ भी हो जाए ये नहीं सीखना है। स्केटिंग अगर हम करते करते गिर जाए, वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव डिफरेंट एक्सक्यूजेस। जैसे मेरा एक्सक्यूज हमेशा ये होता था कि उसके व्हील ठीक से नहीं चल रहे, ये रोड खराब है, या फिर कोई मुझे पकड़ नहीं रहा है, इसलिए आई कुड नॉट एबल टू डू skating, right? Different excuses that only means you are just allowing yourself not to perform that activity in an easier manner, ठीक है। आप एक्सक्यूज इतने सारे इसीलिए निकाल रहे हो because you know you are near to the failure part, you know that you are losing something which people cannot do, or else which people can do but I cannot do, right? It's a vice versa process. सो अगर लोग नहीं कर पाते हैं आप कर पाते हो तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, अगर लोग कर पाते हैं आप नहीं कर पाते तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। एंड द बेस्ट एक एटमॉस्फेयर हमारा इंडिया का ऐसा है कि वी ऑलवेज
justify that person by comparing that person with someone else, है ना. हमारे कल्चर में ही ये चीज है कि हम किसी का भी फेलियर एंड सक्सेस इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं कि वेदर दैट पर्सन कैन डू बेटर देन दिस पर्सन और नॉट, राइट. सो उनकी फील्ड में वो मास्टर है. व्हाई? बिकॉज ही कैन कम्पीट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर पर्सनालिटीज. बट मैं हमेशा ये चीज मानती हूँ कि ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी अ मास्टर ऑफ देयर फील्ड, या फिर कैन बी अ मास्टर ऑफ सर्टेन थिंग्स विच अदर कैन नॉट डू. सो इसमें बहुत सारी हमारे पास नियर अराउंड 90 ऐसी स्किल्स है जो जिसमें हम अपनी मास्टरी डेवलप कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन आवरसेल्फ वेरी यूनिकली, बट हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है. वी यूज्ड टू हैव दैट सेम घिसा पिटा डायलॉग कि अगर आप रैंकर नहीं हो देन यू आर कंसिडर एज अ पुअर परफॉर्मर. इफ यू आर नॉट डूइंग गुड विथ योर बिजनेस, भले ही आप एमएसएमई हो, भले ही आप स्टार्टअप हो, इफ यू आर नॉट डूइंग गुड बिजनेस, आपका टर्नओवर जो है वो कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल से थोड़ा सा भी कम आ रहा है, यू आर नॉट डूइंग गुड बिजनेस. आप अगर कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, यू आर नॉट अ सोशलाइज्ड पर्सन, राइट. सो ये सारे जो टैग लाइन्स है दैट प्लेज अ मेजर रोल हियर. बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, बट for today's class, this is not the talk of the town, या फिर this is not the topic which we wanting to focus on. अभी के लिए हम यही कंसिडर करते हैं कि हैबिट साइकिल को अगर हमें क्रैक करना है, या फिर हैबिट साइकिल, हाउ विल वी परफॉर्म द हैबिट साइकिल, हम किस हिसाब से अपनी हैबिट साइकिल को मैनेज करते हैं. सो हमारे ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है वही चीज हम अभी फिर से कंसिडर करें एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन का एक बेसिक कंसेप्ट होता है या फिर बेसिक एक काम करने का तरीका होता है विच इज नोन एज लाइक हमारे बॉडी को या फिर हमारे ब्रेन को एक आदत होती है, हम इजीएस्ट सॉल्यूशन जहाँ पे मिलता है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट या फिर लीस्ट एफर्ट में जो भी काम हो सकता है वो चीज हम बहुत ही जल्दी से अडेप्ट करते हैं. जहाँ पे हमारी एफर्ट ज्यादा लगती है, जहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, जहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा लगता है, वी ऑलवेज वांटिंग टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर पोर्शन. इसीलिए साइंटिस्ट बहुत कम लोग बनते हैं, रिसर्चर बहुत कम लोग बनते हैं. जैसे पीएम का लेवल है या फिर कोई सीईओ का लेवल है, वो बहुत कम लोगों के लिए पोजीशन होता है. Why? Because वहाँ पे एफर्ट्स ज्यादा है, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है और आपके ये जो ब्रेन के ट्यूनिंग के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है, राइट. एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमारी जो इंडियन इकोनॉमी क्लास है या फिर हमारा जो इंडियन ग्रुपिज्म है वही चीजों को डिफाइन करते हैं कि हम एवरेज क्लास लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं, राइट. अगर कोई बोले कि मैं बेस से जुड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, वी ऑलवेज फील वाओ अबाउट दैट. व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज फील कि इसके साथ बात करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी पड़ेगी, इनके साथ कनेक्ट होने में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. दैट पर्सन इज अ लाइक माइंडेड पर्सन, लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, है ना. सो यही सारी जो चीजें हैं दैट इज ऑल अबाउट योर सीक्रेट. ठीक है, यहाँ पे ही हम सीक्रेट की बात करेंगे कि ये जो सारी हैबिट्स है इसी के अंदर वो सीक्रेट छुपा हुआ है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन नॉट अनफोल्ड सर्टेन थिंग्स जो हमारे लिए है बट फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं है. जैसे वो ज्योतिष देखने वाले लोग बोलते हैं ना, आप ये कर सकते हो, आपके पास ये तरीका है, आप यहाँ पे पहुंचोगे, आप ये ऊंचाई हासिल करोगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे, आपके पास नौकर होगे, चाकर होगे. एंड देन वी यूज्ड टू क्लेम दैट पर्टिकुलर ज्योतिष कि यार फतेहाल वहां पे जा रहा है, उनकी दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं है और दिस पर्सन इज सेइंग आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, आपके पास भविष्य की रेखा बहुत ज्यादा है, विद्या की रेखा बहुत ज्यादा है. एंड व्हाट वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस इज हम परेशानी से, मुश्किल से वहां पे पासिंग मार्क लाते हैं. So that is all about this कि आप वहाँ पे अपने फॉर्मेशन के ऊपर, आप वहाँ पे अपने ये जो पाथ है उसके अंदर जो ट्रैफिक जाम है उसके ऊपर आपने काम नहीं किया है. That's the reason why आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर टिका रहा है कि दिस इज माई कंफर्ट जोन. यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, लेट मी डू दिस. बिकॉज जहाँ पे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे एफर्ट लग रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, which I am not used to it. It is not only about you, it is not only about the poor performer, it is all about human psychology. So अगर मुझे ये सारी चीजें कहीं पे किसी को बोलने के लिए बोला जाए, यानी someone says कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है and you will get money, so definitely I will not do this certain activities, right. मैं
पे बैठ के पैसा कमाती हूँ तो आई विल डेफिनेटली लूज, मेरा इंटरेस्ट जो है उसमें यहाँ से मेरा लूज होता जाएगा इंटरेस्ट, बेसिक चीज है. So this is known as what? This is known as your poor cycle. So यहाँ पे हम सीखेंगे कि habit cycle के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं, what we need to learn. We just need to learn certain things which is known as your habit fundamentals. Habit fundamentals, which is, can you hear me? Yes, आवाज आ रही है. Okay, perfect. So habit fundamentals are based on three things. First habit fundament is known as your cue. ठीक है? So यहाँ पे मैं जब cue की बात कर रही हूँ, so उसका मतलब है आपको जो भी चीज मिल रही है, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई, which is known as your this portion. जहाँ पे मुझे कुछ भी काम करने के बदले कुछ भी काम नहीं करने के बदले मुझे हैंडसम अमाउंट मिल रहा है, सो आई विल डेफिनेटली डाइवर्ट माय फोकस ऑन दैट रादर डूइंग ऑल सच रिसर्चेस एवरी डे. मुझे जहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, जहाँ पे बेस्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए आई नीड टू पुट माई माइंड लाइक एनीथिंग. ये सारी चीजों के बदले अगर मुझे कुछ डिसेंट थिंग मिल रही है, आई डेफिनेटली ट्राई आउट दैट. सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका क्यू. ठीक है, where you will start developing yourself from that particular process. ठीक है, अगर मुझे वहां पे बैठने के लिए पैसे मिल रहे हैं, आई डेफिनेटली ट्राई कि मेरा ड्रेसिंग अच्छा हो, मेरा लुकिंग अच्छा हो, मैं वहां पे बैठूं एंड लोग पीपल विल गेट इम्प्रेस ऑन मी. सो ये सारी चीजों के ऊपर अगर मुझे कुछ काम करने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट माय क्यू इज. ठीक है, वहां पे मुझे क्या ऑफरिंग मिल रही है, वहां पे मुझे अच्छा कमर्शियल ऑफरिंग मिल रहा है, which is my basic focuses, right? So अभी के एरिया के लिए my basic focus is this, और उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ. इसमें बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हम टर्न कर सकते हैं, जैसे सर्कस के जोकर्स, तो उनको यूनी साइकिल चलाने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, इफ एट ऑल दैट पर्सन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन, सर्कस से बाहर निकल जाए, एंड इफ दैट पर्सन स्टार्ट डेवलपिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज इफ अ सैलराइड पर्सन, उनको वहां पे हैंडसम अमाउंट नहीं मिल रहा है. सो दैट पर्सन का क्यू इज फोकस्ड ऑन दिस एरिया, एंटरटेनमेंट एरिया. यहाँ पे मुझे अच्छी चीज मिल रही है विदाउट पुटिंग एफर्ट, जहाँ पे मेरा डेवलपमेंट हो चुका है, मेरे ट्रांसमिशन लेवल बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, मेरे न्यूरॉन कनेक्शंस ग्रो हो चुके हैं, वहीं पे मुझे काम करने के लिए अच्छे पैसे मिल रहे हैं, देन व्हाई शुड आई पुट माय एफर्ट इन सर्टेन एरियाज जहां पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे नए सिरे से काम करना शुरू करना पड़ेगा, राइट? सो वो क्यों के बदले आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्यों के बदले आपको एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही चीज की होती है, वेयर यू विल गेट योर रिवॉर्ड. ठीक है, ये क्यू जो है वहां से आपका रूटीन शुरू होता है. वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, जैसे एक शो आपने किया, 2 शो किया, नाउ यू आर गेटिंग अप्रिशिएशन डे बाय डे. सो दिस इज पार्ट ऑफ योर रूटीन. आपके हर एक मूव के ऊपर, आपके हर एक ट्रिगर के ऊपर आपको वो सारी चीजें मिलेगी, राइट? सो यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रिगर किसको बोलते हैं, राइट? सो वो चीज जो होती है, जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई मेरे लिए और मैंने उसको क्लिक करने का सोचा, या फिर कोई एक ऐसी चीज जहाँ पे आई फील लाइक मुझे ये करना चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ बैठी थी और कोई सोच आ गई, दिस ऑल आर कंसिडर एज योर ट्रिगर. ठीक है, जैसे ही आपने वो ट्रिगर के ऊपर काम करना शुरू किया, दैट इज क्यू. ओके, आपको जैसे एक लाइन मिल गई और वो लाइन जो है उसमें आपका सिस्टमेटिक एफर्ट जा रहा है, विदाउट पुटिंग मच एनर्जी, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट. आप अगर वो पर्टिकुलर चीज को, जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ रूटीन के हिसाब से आ गया, जैसे मैं यहाँ से घर पे जा रही हूँ, ऑफिस से घर पे आ रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, सो वो मेरा डे टू डे रूटीन है. सो इफ एट ऑल आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स व्हाइल ड्राइविंग, फिर भी मैं वहीं पे लैंड होगी, बिकॉज इट्स अ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस व्हिच हैज बीन गवर्न्ड बाय माय माइंड. ये सबकॉन्शियस माइंड से ये सारे डेटास निकल के यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं और वो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है. देयर इज नथिंग यूनिक और नथिंग न्यू व्हिच आई एम डूइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस. और इसीलिए हम बहुत सारी चीजें, मल्टीटास्किंग चीजें एक साथ कर सकते हैं, व्हिच कम्स अंडर आवर रूटीन. जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते करते हम सोच भी सकते हैं कि आज क्या करना है, कितने टाइम पे करना है,
शावर ऑन कर सकते हैं, गीजर की स्विच ऑन करके रखी है, ब्रश करते करते हमें दिमाग में वो आता है कि गीजर की स्विच अभी 5 मिनट्स हो गए हैं, गर्म पानी आना शुरू हो गया, नाउ लेट मी स्विच ऑफ गीजर का स्विच। ठीक है, उस टाइम पे ही जैसे ही टब भरना शुरू होता है, यू अरेंज योर रेगुलर बाथिंग और वो सारी चीजें। आप ब्रेकफास्ट करते करते बहुत सारे फोन कॉल अटेंड कर सकते हो, किसी क्या टेक्स्ट भेजना है इंडिविजुअली वो आप कर सकते हो। दैट इज ऑल बिकॉज दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। वो एफर्टलेस आपका एक रूटीन बन गया है, आपकी चैनल जो है विदाउट ट्रैफिक जाम, आपको रास्ता निकालना उसमें से आ गया है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू कैन डू दिस। अभी ये जो रूटीन है उसके बदले आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मैंने जैसे पहले बोला था, आपका नेगेटिव रिवॉर्ड आया है। अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, यू विल गेट नेगेटिव रिमार्क। अगर किसी ने अप्रिशिएट किया, यू विल गेट पॉजिटिव रिमार्क। पॉजिटिव रिमार्क जैसे ही आपका आएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे ही आपका डेवलप होगा, यू ऑलवेज फील लाइक लेट मी कंटिन्यू विद दिस साइकिल। ठीक है, बट जैसे ही आपका नेगेटिव रिमार्क आना शुरू हुआ, वैसे ही ये जो पर्टिकुलर साइकिल है उसके लिए आपको पुश लेना पड़ेगा। जैसे एक दिन अलार्म जो है हम सभी के घर में होता है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन माइंड कि रोज अलार्म बजता है बट हमें हमेशा ये लगता है कि 5 मिनट्स और सुन लो, राइट? वी रियली डोंट नो कि वो 5 मिनट्स में हमारा कितना अचीवमेंट हासिल होने वाला है, कितना हम लेट पहुंचने वाले हैं, बट वी ऑलवेज फील अभी अलार्म बजा है ना 5 मिनट्स के बाद। तो आई एम श्योर कि हर एक के मोबाइल में 5 मिनट्स बाद वाला, 10 मिनट्स बाद वाला जो लुक पोल होता है ना, वो स्नूज, वो हमेशा हम लगाते ही है। वाई? बिकॉज वी आर एडिक्टेड विद दिस। अभी जैसे ड्राइविंग हम करते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, राइट? बिफोर वी नॉट पुट सीट बेल्ट, तो हमें ट्रेन कैसे किया जा सकता है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट बांधना है, वो एक बजर बजता रहता है। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे, जब तक आपने हैंड ब्रेक खींच के रखा है, जैसे ही आपकी गाड़ी ड्राइव करना शुरू होगी, वो कंटिन्यूअस बजर बजेगा, एंड दैट हिट्स योर माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो अलार्म की तरह हिट कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच यू आर मिसिंग व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, सो इसीलिए अभी हमारा एक ट्रेंड हैबिट बन गया है कि जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं, वी यूज्ड टू पुट अ सीट बेल्ट। हर एक चीज प्रॉपर है कि नहीं, स्क्रीन एकदम ब्लैंक दिखनी चाहिए, देयर शुड बी नो एनी अलर्ट, और उसके बाद ही वी कैन ड्राइव। ठीक है, सो ये एक जो तरीका है, ये हमारे माइंड को ट्रेन करने का एक तरीका है। फ्रॉम वेयर वी गेट द क्लू। ठीक है, सो क्लू जैसे ही हमें मिला, वी गेट एंटर्ड इनटू द रूटीन साइकिल। अभी हमारा एक रूटीन बन गया है, वेदर इट्स बिन बजरिंग और नॉट, हम वो सारी चीजें करेंगे एंड देन ओनली विल स्टार्ट ड्राइविंग। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें हैं, ये इसको बोलते हैं हमारा हैबिट फॉर्मेशन साइकिल। इसी चीजों के ऊपर हमारा हैबिट डेवलप होता है। नाउ हैबिट हम जैसे ही करना शुरू करते हैं, हमारे हैबिट पैटर्न में हम जैसे ही एंटर होते हैं, हमने एक बार, 2 बार, 3 बार, पूरे साल में अगर हमने उसको 21 टाइम्स या फिर इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 का लॉजिक क्या है, उसके लिए भी आई कैन गिव यू अ हिंट, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा सरप्राइज रखना है। आई जस्ट वांट यू टू एनरोल इन दैट पर्टिकुलर डिटेल क्लास, सो दैट वहां पे मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे विद इन 1 आवर मैं अगर आपको दूंगी भी, देन यू विल गेट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे रिसोर्सेज आप यूज करोगे, वहां से कुछ निकाल के लेके आओगे, एंड देन ये जो जंबल होगा ना, उसका कुछ नया रिजल्ट आपको मिल जाएगा, एंड देन यू विल ब्लेम मी कि यार आपने जो सिखाया वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो आपने सही तरीके से फॉलो नहीं की। सो दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ गूगल बाबा अगेन, कि जहां पे आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है एंड यू क्रिएट योरसेल्फ एज इफ कि अभी तो मेरे पास पूरी दुनिया मुट्ठी में है, एंड यू फाइंड आउट विकिपीडिया से व्हाट आई नो इज परफॉर्म बेटर इंफॉर्मेशन। वहां से आप सारी चीजें इकट्ठा करके अपने लिए लेके आते हो, एंड देन यू एंडेड अप विद नथिंग। ठीक है, सो आई जस्ट रियली डोंट वांट दैट टू हैपन, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो सारी जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको परफॉर्म्ड वे में, स्ट्रेटेजाइज्ड वे में अगर आप स्टडी करोगे, देन ओनली इट विल गिव्स यू अ परफेक्ट बेनिफिट। ठीक है, ओके, नाउ अभी ये जो सारी चीजें हैं, हम जिसको लत बोलते हैं या फिर बुरी आदत बोलते हैं, उसमें और ये हैबिट साइकिल, ये दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वो जो बुरी आदत है उसके लिए हम अपने आप को थोड़ा अफर्टिवली वहां पुश करते हैं, और ये जो आदत है, ये जो आपकी हैबिट है,
उसके लिए आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर रूटीन, ठीक है। और इसके ऊपर ही आपका ये जो 7 मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन है वहां पे आता है विद इन 21 डेज, या फिर 7 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, वो अगर आप परफॉर्म कर पाते हो, आप चैनलाइज कर लोगे और वो आपका एक बिहेवियरल पैटर्न बन के निकलेगा। सो व्हाट वी यूज टू से लीडरशिप बिहेवियर, व्हाट वी यूज टू से सक्सेस बिहेवियर, सो ये सारी जो थियरी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज योर हैबिट साइकिल। इसका कोई एक अलग मंत्र या फिर कोई एक ऐसी मैजिक छड़ी नहीं है जो हम घुमाएंगे और आपको सब आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस, इट्स अ वेरी साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोसेस, और वही सारी चीजें हम लर्न करने वाले हैं यहाँ। अभी ये जो सारी चीजें हैं उसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे हम अगर सोच रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अपने फिट को टैप कर रहे होते हैं, या फिर वो अपने फिट को कंटिन्यूस हिला रहे हैं, या फिर कोई कोई जो पर्सन होता है वो अपनी पेन या पेंसिल से ऐसे ऐसे इन शॉर्ट उनके हैंड्स जो होता है वो कंटिन्यूस मूव होते रहते हैं। दैट्स द प्रोसेस, या फिर दैट्स द क्लू व्हिच दे आर गिविंग कि नाउ आई एम एंटरिंग इनटू सर्टेन थिंग्स व्हिच आई नीड टू फोकस वेरी कॉन्शियसली, ठीक है। और इसीलिए उनको ये जो सारी चीजें है ना वो हिंट देती है, वो ट्रिगर देती है कि नाउ यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। सो ये जो सारी पर्टिकुलर हैबिट है, हैबिट आपकी कंटिन्यूअस बिहेवियर में आ रही है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे फिंगर टिप के ऊपर बुक को घुमाते हुए देखा होगा। ये जो सारी चीजें हैं, including anything which you are seeing in the world, which you will like, wow, it's a magic, it's next to impossible thing, that all things has a very basic science which is known as habit science, which we are going to deliver to you in a very detailed manner, in a very systematic manner. आपको डे टू डे एक्सरसाइज दी जाएगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको डे टू डे हर एक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना सिखाया जाएगा। वो एक्टिविटीज के बाद आपका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट विल बी द अदर अल्टरनेट फॉर यू पीपल, वन बाय वन आपको दिखाया जाएगा। आपकी जो हैबिट साइकिल है या फिर आपका हैबिट फॉर्मेशन पैटर्न जो है, वहां पे आपको कोई दिक्कत हो रही है उसको क्लियर आउट करना सिखाया जाएगा। Each and everything we are going to serve you. There is no secret, there is no hidden portion which we are keeping with us in that particular detailed class. यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें मार्केट में स्कैटर्ड होकर रख चुकी है कि आप ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा। मोटिवेशनल फैक्टर्स are always there, but what motivation serves you well, that you should know. So यही चीज के ऊपर हम आपकी इंडिपेंडेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर जैसे ही आपने ये कोर्स के अंदर एनरोल किया, सिस्टमेटिक लर्निंग जो होगा वो आपके पास आना शुरू होगा। यू विल डेफिनेटली क्रैक ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू वांटिंग टू हैव, राइट। डिजायर एंड डिजर्विंग में सिर्फ एक ही फर्क होता है, और वो फर्क हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। और वो जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं टच नहीं कर सकता, या फिर मैं टच करना चाहता हूँ फिर भी मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। जैसी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, यू जस्ट राइट डाउन ऑल योर पेन पॉइंट्स एंड विल बी हियर टू आंसर यू। बट उसके लिए आई एम अगेन इनवाइटिंग यू फॉर द सेम कि आप अपने मास्टर क्लास में, हमारे मास्टर क्लास में आइए। वहाँ पे हम आपको सर्व करना सिखाएंगे। वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, और उसके बाद हम जब हैंड होल्डिंग देंगे देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। Now with this, I'm opening this particular forum for question and answer. If you have any question related to this topic, you can ask us. If you have any question related to our detailed course which we have launched on Skills Rediscovery platform, uske liye aapko koi inquiry hai, then also you are free to discuss here. All right, amazing. Deval, thank you so much for the presentation.